Hello students. So in the previous video we have discussed about the up to the focal length of a lens when immersed in a liquid. After that there are the few ray diagram which we have also done in the class 10th. So these ray diagram you have to do by yourself. Clear? Previous video I tell you कि these ray diagram you have to discuss or you have to do by yourself. So today the first topic is thin lens formula. So what is thin lens formula? Actually the thin lens formula is the relation between u comma v and f. So what is uvf? We all know that u is object distance, where v is image distance, and f is the focal length. So in the lens formula we have to drive a relation between u, v and f. Means we have to drive a relation between image distance, object distance and the focal length. So now we will start this relation. So first of all we say that कि this is a principal axis, ये आपकी क्या है, principal axis है. Clear? And this is a lens, ये कोई आपका क्या है, lens है. Clear? ये आपका lens है. And a object is placed in front of the lens, ये कोई object है जो हमने lens के सामने रख दिया. The object name is AB, जो object का नाम है वो आपका क्या है, AB है. So आपको पता है कि एक ray of light जाएगी toward the lens. Clear? So after the refraction from the lens it passes through the focus. तो ये आपका आ जाएगा F2, second focus. Clear? अब अपन ने अगर रे डायग्राम इसका कंप्लीट करना है, सो देर इज दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर इसको कहेंगे हम. तो ये इसका क्या है, ऑप्टिक सेंटर है. तो अब जब हम इससे एक रे पास करवाएंगे, दिस रे पासिस थ्रू सी एंड पासिस डायरेक्टली without deviation. So at any point these two rays meet with each other. So at this point the image is formed. Now the name of the image is A dash B dash. Clear? So this is the ray diagram. So if we say that ki this is your F1 first focus and this is a point is known as 2F1 second focus on the left hand side. Clear? This is F2. So when object between F1 and 2F1 the image formed is beyond 2F2. So ये आपका मान लो 2F2 था तो इमेज बनी है उससे beyond. So we all know that कि this is your object distance, ये आपका U होता है. Clear? और ये आपका होता है V. This is your V. Clear? And this is your F. ये आपकी focal length है जो दोनों साइड ही बराबर होगी, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लो चाहे आप राइट हैंड साइड लो. दिस इज द फोकल लेंथ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द यू, वी एंड एफ. सो अगेन इन केस ऑफ मिरर वी हैव टेकन टू ट्रायंगल. अगेन इन दैट केस वी आल्सो टेकन टू ट्रायंगल एंड बाय यूजिंग दीज टू ट्रायंगल वी हैव प्रूव दैट a relation between the u, v and f. So first of all we will take triangle ABC and A dash B dash C. So first of all in triangle ABC and triangle A dash B dash C. So जब हम ABC triangle को देखते हैं, this angle is of 90 degree, again this angle is of 90 degree and this angle are the vertical opposite. So by the criteria of AA angle criteria these two triangle are similar. तो ये triangle आपकी क्या होगी, similar होगी. So if these two triangle are similar then we know that कि जो इनकी साइड की रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. तो अगर हम साइड की रेशियो लेते हैं यहाँ से, इफ वी टेकन द साइड रेशियो AB डिवाइड बाय A dash B dash is equal to
सी ए या ए सी डिवाइड बाय सी ए डैश। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सो नाउ वी टेक अनदर ट्रायंगल। तो यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी विच इज नोन एज अपर्चर। क्लियर। ये पॉइंट आपका जो डी है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये सी था और ये डी था, तो दिस सी डी इज इक्वल टू ए बी है आपका, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये जो आपका सी डी है, दिस इज योर सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये सी डी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। इसके बाद हम अगली ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट वी टेकन इन ट्रायंगल सी डी एफ टू एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू। So again this angle is of 90 degree and this is also 90 degree. This angle and this angle are vertical opposite. So again the triangle, these two triangle also similar to each other. By which criteria? Angle criteria. So if these two triangle are similar, again the side ratio, which ratio? CD divide by A dash B dash is equal to C F2 डिवाइड बाय ए डैश F2। ये भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो दिस इज योर इक्वेशन 2। एंड प्रीवियसली वी हैव डिस्कस हेयर कि जो आपका ये सी डी है और जो ये ए बी हैं, ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर। सो इन प्लेस ऑफ सी डी वी कैन राइट हेयर ए बी डिवाइड बाय ए डैश B dash is equal to C F2 divide by A dash F2. Clear? So this is your equation 3. So now we will compare the equation 1 and 3 कि जब हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं? ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। अगेन हेयर इज ए बी डिवाइड बाई ए बी डैश। तो अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर। तो व्हाट इज द साइड हेयर? हेयर इज सी ए डिवाइड बाई सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ टू डिवाइड बाई ए डैश एफ टू। तो ये आपका यहाँ से आ गया। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे सी ए इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड सी ए डैश इज द इमेज डिस्टेंस। लेकिन जो आपका सी एफ टू है, सी एफ टू, दिस इज योर सी एफ टू। क्लियर। ये आपका है सी एफ टू और जो दूसरा आपका है वो है ए डैश एफ टू। क्लियर। लेकिन अब हम हमारे इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो सभी की वैल्यू हमारे पास है। जो सी ए है वो यू के इक्वल है, जो आपका सी ए डैश है वो आपका वी के इक्वल है, और जो सी एफ टू है वो एफ के इक्वल है। लेकिन हमें सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं पता? हमें सिर्फ एफ टू ए डैश या ए डैश एफ टू की वैल्यू नहीं पता। सो इस इक्वेशन में हम ए डैश एफ टू को लिख सकते हैं। तो ए डैश एफ टू आपका क्या होगा? अगर मैं सी ए डैश में से, दिस इज सी, दिस इज ए डैश, अगर इसमें से मैं आपका सी एफ टू माइनस कर देता हूं तो वो आपका आएगा ए डैश एफ टू। तो मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस सी ए आपका एज टीज रहेगा, सी ए डैश एज टीज रहेगा, सी एफ टू एज टीज रहेगा। इन प्लेस ऑफ ए डैश एफ टू मैं यहाँ पे ए डैश एफ टू, बेटा ये लेंथ इतनी, अगर मैं इस पूरी में से इतने को माइनस कर देता हूँ तो यही बचेगा अपने पास। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इन प्लेस ऑफ ए डैश एफ टू वी विल पुट हेयर सी ए डैश माइनस सी एफ टू, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद हमने क्या करना है? वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस। अब जो आपका सी ए है वो यू के इक्वल है, बट इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो इन प्लेस ऑफ सी ए विल पुट हेयर माइनस यू डिवाइड बाई, अब जो सी ए डैश है, सी ए डैश, दिस इज सी ए डैश, इमेज डिस्टेंस है ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का होगा, यहाँ पे वी आ गया, इज इक्वल टू सी एफ टू। अब जो सी एफ टू है ये भी आपका कौन साइड है? इट इज ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड, एफ है तो किसका होगा? ये प्लस का हो गया, डिवाइड बाई सी ए डैश, तो जो सी ए डैश है ये भी आपका इस साइड है और ये वैल्यू क्या है? वी के इक्वल है, ये भी प्लस का आएगा, तो वी माइनस, और सी एफ टू आपका क्या? ये भी उस साइड है, तो ये आपका आ गया एफ। तो हम यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है? दोनों साइड हम कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस के यू वी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। तो जब इस इक्वेशन को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ। तो भाई ये यू वी से आपका यू वी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये यू के साथ यू और एफ के साथ आपका एस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वी एफ के साथ आपका वी एफ कैंसिल हो गया। अब हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो अपना अब यहाँ पे जो बचा है वो बच गया अपना माइनस के 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस यहाँ पे 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। अब इसको हमने रीअरेंज करना है, तो अब इस u को उठा के हम इधर ले आएंगे और इस f को उठा के उधर ले जाएंगे। तो जब इस u को उधर लेके आएंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये f किसका था, माइनस का, उधर जाके होगा प्लस का। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द UVF फॉर द लेंस एंड दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। इसको हम कहेंगे लेंस फॉर्मूला। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला था किसी भी रियल इमेज के लिए। अब वर्चुअल इमेज के लिए सिर्फ मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम से आपने देखना है और बाकी का जो सारा है वो आप खुद प्रूव करोगे। तो द रिलेशन फॉर वर्चुअल इमेज क्या होगी, तो यहाँ पे हम एक रे डायग्राम बना रहे हैं, उस रे डायग्राम को देखना क्या है सभी ने ध्यान से। क्लियर? आफ्टर सीइंग दैट रे डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टूड कि व्हाट वी हैव टू डू। सो अगेन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये आपका कोई है लेंस। क्लियर? अब आपको पता है वर्चुअल इमेज तब बनती है अगर ये आपका था ऑप्टिक सेंटर और ये आपका था फर्स्ट फोकस। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड द फर्स्ट फोकस, उसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ से एक रे जाएगी, अगेन यहाँ तक जाएगी सेंटर तक, फिर यहाँ से वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, तो ये आ गया आपका F2। दूसरी आपकी रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से रे गई। क्लियर? इन दो रे ने आगे नहीं मिलना, तो जब ये दो रे आगे नहीं मिलेंगी, इमेज तो बनानी है, तो फॉर दैट पर्पस वी विल एक्सटेंड दीज रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रे आएंगी तो यहाँ पे आपके आके इमेज बन जाएगी, और जो ये इमेज होगी दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। क्लियर? एरो डालना जरूरी है। ये आपका A था, ये आपका B था, फिर ये आपका A डैश है, ये आपका B डैश है। अगेन वी हैव टू टेक द टू ट्रायंगल। क्लियर? दो ट्रायंगल आपने लेनी है। क्लियर? तो दो ट्रायंगल जो आप लोगे वो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। एक ट्रायंगल होगी आपकी ट्रायंगल A डैश B डैश C, ये। क्लियर? फिर दूसरी होगी ABC। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, जो C वाला एंगल है वो दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल होगी सिमिलर। क्लियर? तो एक तो आपकी ये होगी। अब दूसरी आपने लेनी जो ट्रायंगल है वो लेनी है आपने, फिर से अगर मैं कह देता हूँ कि ये आपका C था और ये पॉइंट D है, तो जो AB है वो CD के इक्वल है। तो अब फिर से हम दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल कौन सी, CDF2। क्लियर? और दूसरी लेंगे A डैश B डैश F2। फिर से एंगल 90 है, ये एंगल 90, और जो F एंगल है वो आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इस केस में जो आपका फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये तो राइट हैंड साइड है, लेकिन जो आपका U है, सॉरी दिस इज V, और जो U है वो दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड हैं, तो ये आपने लेने हैं माइनस के। फिर से दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, बाय प्रूविंग दीज टू ट्रायंगल सिमिलर अगेन वी कैन प्रूव दिस रिलेशन। तो ये आपका था टॉपिक लेंस फॉर्मूला। तो एक और मैं आपको समझा देता हूँ, लेंस फॉर्मूला फॉर द, दिस इज फॉर कन्वेक्स। अब कनकेव के लिए हम देखते हैं वो क्या होगा। सो नाउ वी विल सी फॉर concave lens. So first of all again we have to draw a ray diagram. So what is the ray diagram for that, कि again this is your principal axis, ये आपकी है principal axis. क्लियर? ये आपका कोई है concave lens. ठीक है?
Now we will place an object at this point. An object is kept. This object is again AB. So यहाँ से एक रे जाएगी टूवर्ड द लेंस. क्लियर. फिर से यहाँ पे हमने इसको C कह दिया पॉइंट को. ये C पॉइंट आपका सेंटर कर्वेचर. वी नो दैट कि जो कनकेव है वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो इस रे को वो ऐसे कर देगा. बट इमेज तो बनानी है, तो वी विल एक्सटेंड दिस रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो ये आपका आ गया F1. क्लियर. अब एक और रे जाएगी जो किससे पास होगी, दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और जहाँ पे दोनों ने मिली, यहाँ पे आके ये दोनों रे मिल गई, तो ये आ गई आपकी A डैश B डैश. और ये फिर से आपका है D पॉइंट. अब इसमें कैसे करना है, इसमें फिर से वो दो ट्रायंगल होंगे बेटा. एक ट्रायंगल होगी आपकी ABC. क्लियर. फिर होगी A डैश B डैश C. फिर से दोनों सिमिलर हैं. ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है. क्लियर. और C एंगल दोनों में कॉमन है. अब दूसरा क्या होगा आपका, फिर से दो ट्रायंगल लेनी है हमने. अब जो ट्रायंगल लेंगे हम, एक तो ट्रायंगल हो जाएगी आपकी CDF CDF1 दिस ट्रायंगल, और दूसरी आपकी होगी A डैश B डैश F. तो फिर से जो CD है वो AB के इक्वल है. फिर से हम वहीं से पहले की तरह इसको प्रूव कर सकते हैं. क्लियर. आई होप यू विल अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट एंड यू कैन डू बाय योरसेल्फ. इफ एनी प्रॉब्लम केम देन अगेन डिस्कस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. वी विल डिस्कस इट, यू विल मैसेज मी. सो ये आपका था लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस फॉर द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज. सो यहाँ तक हमने कर लिया है. अब इसके बाद आपकी आती है लीनियर मैग्निफिकेशन. अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो आपका क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन. जो लीनियर मैग्निफिकेशन है बेटा, ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप लोग क्लास 10th में करके आ चुके हो. एक्चुअली द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. सो इट इज डिनोटेड बाय m से लिखते हैं, और ये आपकी होती है h डैश बाई h. क्लियर. m इज इक्वल टू h डैश बाई h विच इज नोन एज इमेज हाइट. इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट. अब इसके रिगार्डिंग भी हमने एक रिलेशन ड्राइव करनी है. वो रिलेशन कुछ नहीं है, जो हमने C वाला आपका केस लिया था, जो F वाला केस हमने लिया था, उसको यूज करेंगे हम. क्लियर. कि A डैश B डैश डिवाइड बाई AB, वहाँ से एक रिलेशन आई थी जो पीछे हमने किया था. वहाँ से हमने ये जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इमेज हाइट, बट वी कैन आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ image distance and the object distance. So we will see it by drawing a ray diagram. So we will start it. Again we will draw a ray diagram. So what is the ray diagram? So this is your principal axis. ये आपकी principal axis है. Clear. ये हमने principal axis बनाई है. ये आपका कोई भी convex lens है. Clear. यहाँ पे हमने object को रख दिया. यहाँ से एक ray चली है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी. तो इसको हमने F कह दिया. क्लियर. F1 ले लो या F2 आएगा बेटा. ये A था, ये B था. एक और रे चलेगी विच इज़ पासिस थ्रू द ऑप्टिक सेंटर. क्लियर. C से पास होगी, यहाँ पे दोनों मिल गई आके, जहाँ पे दोनों मिली हैं यहाँ पे बन गई इमेज. क्लियर. तो ये वैल्यू आ गई A डैश B डैश, और ये आपका था C. ये डिस्टेंस आपका U होता है. Clear. This distance is U and that distance is V and this distance is F. ये हम जानते हैं पहले. So again we'll take two triangle ABC and A dash B dash C. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, पीछे प्रूव करके आए थे. अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें पता है कि इनकी साइड की रेशो AB A dash B dash डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू A dash C डिवाइड बाई AC. ये हमें पता है पहले. क्लियर. अब जो A डैश B डैश है और जो ये है दिस हाइट वी से दैट इट इज H. ये आपकी H है. क्लियर. और ये आपकी है वी वी से दैट इट इज H एंड इट इज H डैश. क्लियर. अब जो H है इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो H है वो प्लस का होगा, एंड इट इज इन डाउन डायरेक्शन तो ये आपका होगा माइनस का. सो दिस इज U जो आपका है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का होगा, V आपका राइट हैंड साइड है तो प्लस का होगा. सो विल पुट वैल्यू हेयर.
So here comes out to be h dash is of minus divide by h is of plus is equal to ac a dash c is plus v divide by माइनस के u. क्लियर. तो ये माइनस के साथ अगर इसको मैं दोबारा लिखता हूं तो ये आ जाएगा माइनस के h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू माइनस के v बाई यू. तो दिस माइनस कैंसिल विद दिस. और हम ऊपर लिख के आए हैं कि जो h डैश बाई h है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है. तो इन प्लेस ऑफ h डैश बाई h वी कैन राइट m. सो m कम्स आउट टू बी, दिस m कम्स आउट टू बी v by u. So this is the another formula to find the magnification. एक्चुअली में जो मैग्निफिकेशन है वो हमें बताते हैं कि हाउ मच द इमेज साइज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज. कि लेंस के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा उसके रिस्पेक्ट में इमेज के साइज में कितना चेंज आया है, कि वो कम हुआ है या क्या हुआ है, वो ज्यादा हुआ है. अब इसको हमने समझना है क्या है कि m प्लस होगा तो कौन सी इमेज बनेगी, m माइनस का होगा तो कौन सी इमेज बनेगी. कोई मुश्किल नहीं है. वी ऑल नो दैट कि द रियल इमेज, जो आपकी रियल इमेज होती है, जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं बच्चों को अच्छे से पता है कि जो रियल इमेज है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स नीचे की तरफ बनती है, उल्टी हमेशा. क्लियर. और जो वर्चुअल इमेज होती है दैट इज ऑलवेज अपराइट, वो होती है अपराइट, ऐसे बनती है वो वर्चुअल इमेज. तो इसको हमने डिस्कस करना है. सो फर्स्ट हेयर विल राइट m वी विल राइट हेयर कि m जो है वो h डैश बाई h है. क्लियर. तो इसको मैं एक रफ डायग्राम से समझाता हूँ आपको यहाँ पे कि ये कोई लेंस है, इसके सामने अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ से रे गई. अगर इमेज रियल होगी तो ऑलवेज वो क्या बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी. तो जो आपका h है वो तो प्लस का है, लेकिन जो h डैश है वो किसका है, माइनस का है. तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, इन प्लेस ऑफ h डैश क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. इन डिवाइड बाय h आपका क्या आएगा, प्लस का आएगा. तो जब इन दो टर्म को प्लस माइनस करेंगे तो जो m की वैल्यू आगी वो आपकी आएगी नेगेटिव. तो इसका मतलब ये है कि जब मैग्निफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर द रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव. मीन्स जो अब आपकी इमेज है वो आपकी रियल इमेज है. मीन्स अगर m की वैल्यू आपकी माइनस की आती है तो इमेज आपकी होती है रियल. दूसरी तरफ हम एक और केस डिस्कस करते हैं कि इफ वी विल फाइंड द m. हमने क्या लिया, ये आपका लेंस लिया कोई भी, ये वही लेंस है पहले की तरह. हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ से रे गई नीचे, यहाँ से गई यहाँ पे, दोनों ने नहीं मिली, यहाँ पे इकट्ठा किया. तो ये देखो ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है. मीन्स दोनों वैल्यू क्या है, प्लस की होंगी. तो दोनों ही प्लस डिवाइड बाय प्लस. तो जो m आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा. और जो इमेज अपराइट होती है, वर्चुअल होती है, मीन्स m की वैल्यू होगी किसकी, प्लस की. किसके लिए, फॉर दी वर्चुअल. क्लियर. तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे. अब नेक्स्ट हमने निकालनी है द मैग्निफिकेशन इन दी फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ. कि जो मैग्निफिकेशन होगी फोकल लेंथ की फॉर्म में कैसे आएगी. अब फोकल लेंथ की फॉर्म में निकालने के लिए आपकी एक बार निकलेगी फोकल लेंथ और u की फॉर्म में, और एक बार निकलेगी फोकल लेंथ और v की फॉर्म में. सो फर्स्ट इफ वी वांट टू फाइंड द मैग्निफिकेशन इन दी फॉर्म ऑफ u एंड f. तो पहला पॉइंट अपना है यहाँ पे, हमने क्या निकालनी है, m को फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन को फाइंड करना है इन टर्म ऑफ u एंड f. तो हम लेंस फॉर्मूला लेके चलेंगे. तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, द लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. क्लियर. तो अब हमने इसको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ u एंड f. तो वी हैव टू रिमूव v फ्रॉम हियर. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v. तो यहां पे आपका आ जाएगा v बाई v माइनस v बाई u इज इक्वल टू v बाई f. क्लियर. ये हम निकाल रहे हैं v की फॉर्म में हम निकालना चाहते हैं इसको, इन दी फॉर्म v एंड f. v और f की फॉर्म में लिखा, ना कि u की फॉर्म में, क्योंकि यहां से आपका v से v कैंसिल हो जाएगा. ये आपका आ गया माइनस के v बाई u. क्लियर. और ये आपका है v बाई f. क्लियर. तो जब यहां से हम देखते हैं इसको, तो यहां पे आपका आ जाएगा 1 माइनस v बाई u इज इक्वल टू v बाई f. तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे और इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे.
तो जब यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, v बाई यू, यहाँ पे किसके थे, माइनस के थे, इसको उठा के उधर लेके चले गए तो वो प्लस का हो गया, और ये प्लस की तो इधर आ गया माइनस, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस वी बाई एफ। अब पीछे हम मैग्निफिकेशन लिख के आए हैं, जो मैग्निफिकेशन थी वो किसकी फॉर्म में थी, तो मैग्निफिकेशन आपकी थी v बाई यू, तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ m, तो जो m आया आपका वो आपका आ गया 1 माइनस वी बाई एफ। अगर इसको मैं खोल के लिखना चाहता हूँ तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से कि f आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ गया f माइनस वी, तो जो m की वैल्यू आ गई वो आ गई f माइनस वी बाई एफ। तो मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f। तो अगर हम सिमिलरली ही इसी की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, क्लियर, इसको हम यहां कर देते हैं आपके लिए, यहां पे कर देते हैं इसको, मीन्स m इन टर्म ऑफ u एंड f, जिस टर्म में निकालना है उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो मिरर फॉर्मूला था, सॉरी जो लेंस फॉर्मूला था, वो था आपका 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो जिसकी टर्म में निकालना है उसी से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो अब हमने u की टर्म में निकालना है तो दोनों साइड कर देंगे u से मल्टीप्लाई, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। जब मैं u से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे आ जाएगा u बाई वी माइनस u बाई यू इज इक्वल टू u बाई एफ। क्लियर। अब इसके बाद ये u से u कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया u बाई वी माइनस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ। इस 1 को उठा के उधर लेके चले गए तो u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ प्लस 1। क्लियर। अब अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो आपका जो आएगा, क्लियर, तो u बाई वी एज इट इज रह जाएगा यहां से। क्लियर। u बाई वी इज इक्वल टू एफ आपका आ गया एलसीएम, तो यहां से वैल्यू आ गई u प्लस एफ। भाई ये तो u बाई वी है, लेकिन जो m है वो तो v बाई यू है, तो हम कर देंगे दोनों साइड रेसिप्रोकल। तो जब दोनों साइड रेसिप्रोकल हैं तो v बाई यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई u प्लस एफ। और जो आपका ये u v बाई जो u है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो जो m की वैल्यू आई यहाँ से, तो जो आपका m आया है यहाँ पे, तो m कम्स आउट टू बी f डिवाइड बाई u प्लस f। तो हमने दोनों निकाल दी, m इन टर्म ऑफ दिस इज v एंड m इन टर्म ऑफ इन u एंड f। सो दिस इज योर टॉपिक, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ u एंड v एंड f। क्लियर। तो दिस इज नाउ ओवर। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ये भी आपके लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले हम कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर। सो जो नेक्स्ट है आपका वो है पावर। तो व्हाट इज पावर? द पावर इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट। कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो लेंस पे फॉल की है, उसने उस लाइट को कितना कन्वर्ज किया है या कितना डाइवर्ज किया है, मीन्स उसने उसके पाथ से कितना उसको चेंज किया लाइट का पाथ। क्लियर। तो ये होती है आपकी पावर। सो पावर इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से लिखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर को हम रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी कहते हैं। मीन्स पावर इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। मीन्स पावर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ पी, इट इज 1 अपॉन एफ। हियर हैव रिटन हियर मीटर। मीटर का मतलब है कि अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में है, दैट इज p by 1 upon f, but if your focal length is in centimeter, every time you will write here f is if it is in centimeter. So ये रिलेशन है आपकी फोकल लेंथ और पावर के बीच में। क्लियर। और जो पावर की यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अब यहां से जो यूनिट निकलेंगी पावर की, यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो होती है आपकी डायोप्टर। डायोप्टर, द यूनिट ऑफ पावर इज डाय, विच इज डिनोटेड बाय डी। क्लियर।
और अगर मैं यहाँ से यूनिट निकाल लेता हूँ आपकी, क्लियर, P इज इक्वल टू 1/f, तो जो आपका ये होता है फोकल लेंथ मीटर के अंदर होती है, तो दिस इज कम्स आउट -1, मीन्स जो वन डायप्टर है वो 1 मीटर के माइनस m की पावर -1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है डिफाइंड द यूनिट ऑफ पावर। सो इफ द focal length of a lens is 1 meter, then the power of the lens is 1D। 1D मीन्स 1 डायप्टर। एक हमने से पीछे एक रिलेशन की थी, वो था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, वहां से भी हमने एक रिलेशन निकाली थी। वो रिलेशन थी आपकी 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर, तो इस 1/f की जगह मैं यहाँ पे p भी लिख सकता हूँ। तो जो p आ गया वो आपका गया n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां से आपको जो पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि जो पावर है और जो फोकल लेंथ है, अब जो यहां से इस फोकल लेंथ को अगर मैं देख रहा हूं, दिस f एंड दिस n हैव अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, मींस जो f है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, बट जो p है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मींस यहां पे पॉइंट आपने समझना है यहां पे कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक आपकी रिलेशन है जो आपने समझनी है कि फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो पावर है वो है, फोकल लेंथ जो आपकी है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है और जो पावर है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से हमने एक पॉइंट और समझना बेटा, यहाँ पे एक आपकी आएगी कोची इक्वेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे कोची इक्वेशन। अब जो कोची इक्वेशन ये कहती है कि द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स एंड द वेवलेंथ, कि जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है n और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 2 से। ये आपकी है कोचीज इक्वेशन, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर, अब यहां से अगर मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो n है और लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन प्लेस ऑफ n मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 1/λ। तो जो p है उसकी रिलेशन जो लैम्डा के साथ आ गई वो आ गई n²। अब यहां पे आपका ये है कि कलर से कैसे वेरिएशन आएगी। अब जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो रेड कलर की अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और दूसरी तरफ जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो द पावर ऑफ अ लेंस फॉर अ रेड कलर इज लेस देन द पावर ऑफ अ लेंस फॉर ब्लू कलर। अब यहां से हमने सिर्फ बात करनी है कि जो लैम्डा है, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू। अब अगर ये आपकी वैल्यू लैम्डा की ग्रेटर है, बड़ी है रेड कलर के लिए, तो पावर जो होगी रेड कलर के लिए किसी भी लेंस की वो आपकी क्या होगी, कम होगी। पावर क्या होगी, कम। अब कम का मतलब ये है कि अगर वो लेंस कंजर्व करता है तो उस रेड कलर को वो दूर जाके कंजर्व करेगा एज कंपेयर टू। ठीक है, तो ये आपने समझना है कि जो वेवलेंथ है रेड कलर की वो ज्यादा है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी द पावर ऑफ द लेंस फॉर द रेड कलर इज लेस, कि जो पावर होगी लेंस की वो लेस होगी। और यहां से अगर हम रिलेशन निकालते हैं पावर और लैम्डा के बीच में रिलेशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द पावर एंड द वेवलेंथ। ये p है और ये आपका है लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपने पॉइंट समझने हैं, ये 3 पॉइंट आपके फोकल लेंथ और n के बीच में डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्लियर, तो जिस लैम्डा के साथ n की रिलेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, अब वही बात है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट के पाथ में कम चेंज आएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपने क्लास 10th में एक एक्टिविटी की थी कि ये आपका प्रिज्म है। क्लियर, जब प्रिज्म पे ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करती है तो यहां से वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हमने ये ऐसे कहा था कि ये आपका था रेड कलर और ये आपका था वॉयलेट कलर। क्लियर, तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया ये एंगल आया था और ये एंगल आया था, तो हमने क्या कहा था कि रेड लाइट के पाथ में चेंज सबसे कम है, मीन रेड लाइट डेविएट द लीस्ट एंड द वॉयलेट लाइट डेविएट द मोस्ट। क्या कारण था उसका? उसका कारण यही था बेटा कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर के लिए इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स होगा वो क्या होगा, कम होगा।
मीन्स रिलेट करेंगे जब हम इनको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कम है तो उस मीडियम में से जब कोई लाइट पास होगी तो उसकी जो पाथ में चेंज कम होगा। अब वही बात है, जो वोलेट कलर था उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम होती है। अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब मीडियम है, डेंसर अगर मीडियम है डेंसर तो पाथ में भी चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये हमने पॉइंट समझना, वैसे इसको हम अगले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका था पावर, इट्स रिलेशन विद द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, इट्स रिलेशन विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मींस थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, कि हमारे पास कोई दो लेंस हैं वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में है तो उन दोनों की कंबाइंड पावर क्या होगी। क्लियर। तो इसके लिए फिर से हम एक रे डायग्राम बनाएंगे। वो रे डायग्राम क्या आपका वो समझना है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट कि दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कोई भी है, ये आपका आ गया पहला लेंस। क्लियर। एंड दिस लेंस इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सेकंड लेंस, ये आपके सेकंड लेंस के साथ कॉन्टैक्ट में है। अब यहां से एक रे जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हमने ये रे वाला केस ले लिया। क्लियर। अब यहां से रे गई, वो रे इस लेंस से निकलने के बाद फिर इस लेंस पे फॉल करेगी और यहां पे आपकी बन गई, मान लो दिस इज योर फाइनल इमेज, यहां पे आपकी आ गई आई इमेज। क्लियर। और ये था ऑब्जेक्ट। अगर ये लेंस यहां पे ना होता तो ये रे नहीं यहां पे नहीं डाइवर्ज होनी थी, हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में किया था, तो ये आपकी इमेज यहां बनी थी I1। क्लियर। अगर ये आपका U है, क्लियर, और ये आपका V है, तो मैं कह देता हूं कि ये जो वैल्यू है ये है आपकी V1। तो हमने यहाँ पे दो केस करने हैं और हम कह देते हैं कि जो पहला लेंस है उसके लिए जो F है इट्स F इज F1 है, और जो सेकंड लेंस है इसके लिए जो फोकल लेंथ है वो F2 है। तो दोनों के ऊपर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लेंस है उसने जो इमेज बनाई है वो I1 पे बनाई है। अगर ये लेंस यहाँ ना होता तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला होता है आपका 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सो विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो इन प्लेस ऑफ V वी विल पुट हेयर V1, तो आपका यहाँ पे 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो ये आपका आ गया पहली इक्वेशन, मान लो फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट अब हम इस लेंस को ले लेते हैं। अब जब इस लेंस को हम लेंगे बेटा, इसको हमने ध्यान से रखनी है क्या बात है कि इसके लिए जो ये पॉइंट है इट इज एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपका है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मीन्स ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये इसने यहाँ पे इमेज बनाई है। तो जब इसके लिए मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वो आपका फिर लिख देते हैं द फॉर्मूला इज 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। तो जो V है वो तो ये फाइनल इमेज ही है, तो 1/V एज इट इज आ गया, माइनस जो U है इसके लिए जो U काम कर रहा है वो आपका जो U है वो आपका जो U है दैट इज ऑफ V1, जो ये आपका है V1। तो हियर कम्स आउट माइनस के V1 क्लियर इज इक्वल टू 1/F2। तो ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम कह देते हैं ऐड 1 और 2। जब हम 1 को और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये V1 के साथ ये V1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आएगा माइनस के 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। और ये हमें पता है कि 1/V प्लस 1/P किसके इक्वल है, 1/F के इक्वल होता है फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो अगर आपके कोई भी दो लेंस होंगे, अगर उनको हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो उनकी जो पावर है दैट इज कंबाइंड इन द फॉर्म रेसिप्रोकल। अब अगर हमने P की बात करनी है तो यहां से P क्या होगा, तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहां लिखना चाहता हूं, क्लियर, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। तो 1/F किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू P, एंड 1/F1 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू P1, प्लस ये किसके इक्वल है 1/F2 दैट इज P2। तो जितने भी लेंस होंगे जब उनको हम जोड़ते जाएंगे उनकी पावर सीधी ऐड होती जाएंगी, फोकल लेंथ ऐड होगा इन दी फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये पॉइंट हमने यहां से क्या समझा है, अब वो डिपेंड करता है किसकी फोकल लेंथ प्लस की किसकी। अब ये दोनों क्या थे, सेम लेंस थे, तो दोनों की प्लस की फोकल लेंथ होती है भाई, मीन्स फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स की वो प्लस की होती है।
क्लियर। जो कन्वेक्स की फोकल लेंथ अगर प्लस की है तो हमें पता है कि जब दोनों प्लस को जोड़ेंगे तो ये प्लस की टर्म आएगी, लेकिन अगर इनमें से एक कनकेव है और एक है कन्वेक्स तो जब उन दोनों को जोड़ेंगे तब वैल्यू अलग आएगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ही बता देता हूं आपको यहाँ पे कि अगर हम कह देते हैं कि ये आपका क्या था, कोई कन्वेक्स था, क्लियर, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव, क्लियर। एक की फोकल लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर और एक की है 20 सेंटीमीटर। अब वी लो दैट कि हमने यू वी एफ की बात की थी, याद होगा क्लास 10th के अंदर, क्लियर। अब कनकेव के लिए यू तो सबके लिए माइनस का होता है, लेकिन जो वी होता है वो कन्वेक्स के लिए प्लस का होता है, कनकेव के लिए माइनस का होता है। सिमिलरली जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस की होती है, ये किसकी होती है, माइनस की। इसका एक केस आता है 6th केस, वो हमने याद रखना, लेकिन एफ तो हमेशा कन्वेक्स का क्या होता है, प्लस होता है, और कनकेव का हमेशा क्या होता है, माइनस। किसकी वैल्यू बात करें, एफ की बात कर रहे हैं। तो अगर एक 10 है एक की 20 है, तो अगर यहां से हम बात करेंगे, हमने निकालनी है इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, हम इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ, दीज टू लेंसेज, वो क्या होगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 क्या है, 1/10 आ गया, 1/10 प्लस, लेकिन जो आपका कनकेव की फोकल लेंथ होती है वो होती है माइनस की, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 20, क्लियर। तो जब यहाँ पे माइनस का 20 आया आपका, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। 20 यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्लियर। 20 एलसीएम है तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/20, क्लियर, प्लस की आएगी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल करके जो यहाँ से आपकी एफ आया वो 20 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। तो जो दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी वो आ गई आपकी एलसीएम 20 आ गया, तो 2 माइनस 1 तो 1/20, तो कंबाइंड फोकल लेंथ इनकी 20 आई। जब 1/10 को जोड़ा और 1/20 को जोड़ा, ये माइनस का लेना। तो ये आपका कंसेप्ट था कंबाइंड फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 और मोर लेंसेज की। जब 2 या 2 से ज्यादा लेंस को हम जोड़ेंगे तब आपकी फोकल लेंथ क्या होगी। वही बात है अगर दोनों ही लेंस आपके क्या होते, अगर दोनों ही लेंस सेम फोकल लेंथ के होते, ये भी 10 का और ये भी 10 का, तो फोकल लेंथ आपकी 0 आनी थी, ठीक है। लेकिन अब एक 10 का था एक 20 का, तो फोकल लेंथ आपकी किसकी आई है, प्लस के 20 होगी। मीन्स अब जो दोनों कंबाइन है, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, इट इज बिहेव लाइक अ कन्वेक्स। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या। तो अभी नेक्स्ट आपका है टॉपिक प्रिज्म। इसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिज्म। Prism is a homogeneous transparent medium bounded by at least 2 non-parallel surfaces inclined toward some angle। जो प्रिज्म है एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो नॉन पैरेलल सरफेस ने एक दूसरे को बाउंड किया हुआ है, और वो दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एंगल पे होंगे, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो वी ऑल नो दैट, सबने प्रिज्म देखा है। तो ये आपका प्रिज्म है, ये प्रिज्म होता है आपका इन 2D। दिस योर प्रिज्म, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये है A, B और AC। ये आपके हैं दो नॉन पैरेलल सरफेसेस इनक्लाइन टू एन एंगल थीटा। तो ये आपका है प्रिज्म का डायग्राम। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दी 4 थिंग्स। वो 4 चीजें क्या है, उनके हमने एक रिलेशन निकालनी है। क्लियर, वो है क्या, इससे पहले हमने क्लास 10th में एक रे डायग्राम ड्रॉ किया था, तो उस रे डायग्राम को मैं पहले ड्रॉ करूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द 4 क्वांटिटीज। तो वो 4 क्वांटिटी कौन सी, वो डायग्राम के बाद आपके पास आएंगी। सो अगर मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका कोई भी प्रिज्म है, क्लियर, दिस इज अ प्रिज्म, क्लियर, ये आपका एक प्रिज्म है, ये आपका A है, ये B है और ये C है, क्लियर। एंड A इज दी, दिस एंगल इज A इज दी एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर। तो ये आपका जो A एंगल है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर। थोड़ी प्रिज्म की शेप आप ठीक कर लेना जब आप ड्रॉ करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट कि ये आपकी एक्टिविटी थी आपकी क्लास 10th में भाई। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई है, क्लियर, तो आपको बताया था, यहाँ से फिर ये सीधी होगी ऐसे, ये आपकी फिर नीचे की तरफ गई। मान लो ये आपकी वो थी जो हमने पिन लगाई थी, पिन के बाद फिर हमने कहा था, क्लियर। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। विल ड्रॉ नॉर्मल इज दीज 2 पॉइंट। एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है और एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, क्लियर।
इन नॉर्मल के नाम हम रख देंगे बाद में, वो देखते हैं। तो जो ये है आपका, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो आपका ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर? ये लाइट किस एंगल से बाहर निकली है। तो जो एक्चुअल पाथ था लाइट का वो ये था, सीधी जाना था लाइट ने, ये था रिफ्रैक्टेड पाथ ऑफ द लाइट, कि लाइट रिफ्रैक्टेड पाथ। तो ये जो एंगल आया था, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम अब लिखेंगे डेल्टा के साथ। ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि कितना चेंज आया उसके पाथ में, एंगल ऑफ डेविएशन। तो नाउ वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन 4 आई ई ए, और इस डेल्टा में रिलेशन निकालनी है। वो रिलेशन क्या है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये हमने रिलेशन फाइंड करनी है। अब रिलेशन ये कहती है आपको कि जो अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन को प्लस करते हैं, और उधर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस को प्लस करते हैं, तो ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं प्रिज्म के डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर डायग्राम, ताकि इसको हम प्रूव कर सकें प्रॉपरली। तो व्हाट इज प्रिज्म, तो ये आपका कोई भी प्रिज्म है, क्लियर, दिस इज अ प्रिज्म। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट ने इंसिडेंट किया है, क्लियर, उसके पाथ में चेंज आया तो ये लाइट ऐसे बेंड हो गई, उसके बाद ये लाइट नीचे की तरफ मुड़ गई ऐसे। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर, और ये आपका है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस रे को मैंने आगे एक्सटेंड किया और इस रे को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये आपका आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमने रिलेशन निकालनी है। अब जो नॉर्मल है आपके यहाँ पे ओ एन एंड ओ एन, दिस इज एन, दिस इज ओ, क्लियर, और ये है आपका एन डैश। ये दो नॉर्मल हमने दिखा दिए यहाँ पे। इसको हमने सीधा एक्सटेंड किया था, तो ये जो पॉइंट है ये इसको कह दिया इन्होंने ओ डैश, ये ओ था तो ये है ओ डैश, क्लियर, और जो ये रे यहां तक गई है इसको एच कह रहा है, ये पॉइंट को, क्लियर, और ये आपका पॉइंट था ई, दिस इज पॉइंट ई, ये ई पॉइंट है आपका, और जो ये पॉइंट है इसको कह दिया हमने एफ, क्लियर, और इसके अलावा हमने मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया है, वो देखते हैं क्या आपका, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट इट। तो इसके बाद हम कह देते हैं कि जो ये एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको नाम दे दिया मैंने R1 का, क्लियर, और जो ये एंगल है इसको नाम दे दिया मैंने R2। इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इस फेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज क्वांटिटीज, ठीक है, और ये E था और ये F था। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं, वी विल प्रूव दिस रिलेशन। वन मोर पॉइंट कि ये आपकी इंसिडेंट रे थी, इसके पाथ में चेंज आया, मीन्स इंसिडेंट रे और इस रिफ्रैक्टेड रे के पाथ में जो चेंज आया है उस एंगल को हम, इस एंगल को हमने कह दिया दिस एंगल इज डेल्टा 1, क्लियर, और जो ये एंगल है आपका यहाँ पे दिस एंगल, इसको हमने कह दिया डेल्टा 2, क्लियर। ये है चेंज इन द पाथ ऑफ इमरजेंट रे विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, ये अंदर वाली रे के रिस्पेक्ट में, और ये जो होल है ये है डेल्टा, क्लियर। अब इस चीज को हमने समझना है। तो अगर मैं ई पॉइंट पे देखता हूं, एट पॉइंट ई, क्लियर, अब मैंने दो चीजें देखनी है यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट एफ और पी, एट पॉइंट ई एंड एफ, क्लियर। तो ये जो एंगल था आपका आई था, और ये पूरा एंगल आपका होगा आई इक्वल टू दिस, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकल अपोजिट। अब जो नीचे वाला एंगल है दिस एंगल, ये आपका R1 के इक्वल है, और जो ऊपर वाला एंगल है वो डेल्टा 1 के इक्वल है। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन आई, I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, क्लियर। अब जब मैं जाता हूं F के ऊपर, फिर से F के ऊपर ये पूरा एंगल E है, ये एंगल R2 है, और ये एंगल था आपका डेल्टा 2।
फिर से ये दोनों एंगल का वर्टिकल अपोजिट, तो यहां से आपका जो आपका ई आया, दिस ई कम्स आउट टू बी डेल्टा 2 प्लस R2। तो अब हमने यहां पे रिलेशन निकाल दी किसके लिए, डेल्टा की और आर की। यहां से इन दोनों केस से मैंने डेल्टा निकाला, तो जो डेल्टा 1 आया आपका वो आ गया आपका I माइनस R1, और यहां से जो डेल्टा 2 आया वो आपका आ गया E माइनस R2। ये हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब हम चलेंगे ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल का नाम है EFO डैश, ट्रायंगल EFO डैश। तो भाई जो ये एंगल डेल्टा है 1 है, ये डेल्टा 2 है और ये बाहर है, तो यहां लगा दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब जो एक्सटीरियर एंगल है वो डेल्टा था, ये बाहर वाला एंगल दिस एंगल, ये डेल्टा है आपका, ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है। तो जो डेल्टा आपका आ गया वो आपका आ गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्लियर, ये हमने लगा दी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद मैंने क्या किया, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इन दिस इक्वेशन। तो जब डेल्टा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा 1 आपका है I माइनस R1 प्लस, और डेल्टा 2 आपका E माइनस R2। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा आपका इधर ही है। इसके बाद मैंने क्या किया, E और I को इकट्ठा, E प्लस I को इकट्ठा लिख लिया यहाँ से, और अंदर से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, दोनों ही माइनस के हैं, तो अंदर आ गया R1 प्लस R2। क्लियर, इसको नाम दे दिया हमने, कोई भी क्वेश्चन नाम दे दो देना चाहते हो। क्लियर, तो ये आपकी मान लो फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और ये आपकी होगी थर्ड। अब हम चलेंगे एक रेक्टेंगल के ऊपर या क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। वो क्वाड्रिलेटर का नाम है AEOF, AEOF, ये सारी, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, ये सारी। तो वी ऑल नो दैट क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो आपका होता है कितना, दैट इज इक्वल टू 360। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं आपका एंगल ए इन क्वाड्रिलेटरल AEOF, तो जब इस क्वाड्रिलेटरल पे गया मैं तो एंगल ए प्लस ये एंगल आपका AEO, एंगल AEO प्लस दूसरा एंगल आपका है EOF प्लस तीसरा आपका एंगल है AFO इज इक्वल टू 360। क्लियर, अब इन सभी की वैल्यू हम पुट करना शुरू कर देते हैं यहां पे। क्लियर, कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ दीज एंगल। तो भाई एंगल ए तो एज इट इज आ गया ए। क्लियर, अब अगर आप इस एंगल को देखते हो, दिस एंगल, ये जो आपका एंगल है, ये जो एंगल है आपका, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था भाई यहाँ पे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये एंगल इसका 90 डिग्री था, तो ये भी कितना 90 डिग्री है। तो एंगल जो आपके एफ और जो ई और जो एफ एंगल होंगे, क्लियर, ये 90 डिग्री इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस 90 प्लस एंगल EOF प्लस 90। अब उधर चल रहा है 360 आपका, तो 90 90 180 हो गया, उधर से 180 माइनस कर दिया, तो एंगल A प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू 180 आ गया आपका। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। क्लियर, अब हम एक ट्रायंगल में चलते हैं। अब वो ट्रायंगल कौन सी है, उस ट्रायंगल का नाम है FEOF, ट्रायंगल EOF। क्लियर, वो ट्रायंगल दिखा देता हूं, कौन सी ट्रायंगल है अपनी, ये ट्रायंगल है अपनी, ये नीचे वाली। तो इसमें ये एंगल R1 था, ये एंगल R2 था, और ये एंगल था O। तो इन सभी एंगल का सम क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। क्लियर, ठीक है भाई, तो ये 180 के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहां से एक रिलेशन निकालना चाहता हूं कि अगर एक और पॉइंट हमने यहां पे देखना है, वो पॉइंट क्या है उसको ध्यान से देखना है, क्या पॉइंट आएगा। वो पॉइंट क्या है
कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल O ये भी 180 के इक्वल है। क्लियर। और A प्लस एंगल EOF ये भी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो अगर दोनों 180 के इक्वल होंगे तो मैं लिख सकता हूं यहां से R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O, ये भी तो एंगल O है OEF, तो ये O के साथ O क्या हो गया आपका, कैंसल। तो हमने क्या देखा यहां से, तो एंगल A की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी R1 प्लस R2। क्लियर। एंगल A किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 के इक्वल आ गया। अब मैं लेके चलता हूं थर्ड इक्वेशन के अंदर आपको। थर्ड इक्वेशन में आपका क्या है, R1 प्लस R2। तो इस R1 प्लस R2 की जगह मैं एंगल A रख सकता हूं। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहां पे हम R1 प्लस R2 यहां रख देंगे A। तो यहां पे आपका आ गया एंगल A। क्लियर। इस एंगल A को उठा के उधर लेके चले जाएंगे। तो डेल्टा प्लस एंगल A एंगल डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। तो ये हमारी रिलेशन आ गई किसके लिए, द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा A E एंड I। क्लियर। इससे रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रिज्म फॉर्मूला, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसके बाद आपकी 2 या 3 वीडियो और होंगी इस चैप्टर की, मैक्सिमम 2 वीडियो होंगी, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने आज देखना है, इसको कंप्लीट करना है। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो बेटा आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप कि सर इस पॉइंट में हमें डाउट है। क्लियर। और बताना है कि बोर्ड का बेटर था या इस पेज के ऊपर जब हम काम करें वो सही है, ये भी आपने बताना है कि ये सही था या जो पहले हम करते थे वो सही है। अकॉर्डिंग टू मी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट सीधा सामने से चल रहा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट। क्लियर। तो अगर कहीं पे कोई डाउट है तो वीडियो को बार बार देखो। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तब आप डिस्कस कर सकते हो, मेरे को मैसेज करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करें। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को देखने के बाद एट द एंड आपने कमेंट करना है। क्लियर। और एक आपके जो डिफिकल्ट कंसेप्ट होंगे, जो बीच में फैक्ट फाइल वगैरह होती हैं, उनकी एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी, आपने वहां से देखना है। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।